So we'll start today. Uh, I will request everyone to get ready with your notes copies. I will request everyone to get ready with your notes copies. On the header of every page, write date, subject, your name, roll number, and section. So in the last class, we were seeing about the comparison between pointer and reference. So what I told you earlier was that a pointer is a special kind of a variable which can store the address of another variable. The pointer has to exist in the memory in order to store the address, but reference को memory में exist करने की जरूरत नहीं है. It does not need to exist in the memory. It is just a duplicate name for the same memory location. That was the major difference between a pointer and a reference. That's why pointers are preferred. References are preferred above pointers. In Java, there is no idea of pointers. Only references are used. C++ में दोनों है, because C++ is a more kind of a conceptual development kind of a language. So लॉजिक डेवलपमेंट के लिए C++ बहुत ही बेहतरीन लैंग्वेज है, जिससे कि आपको एज वेल एज प्रोसीजर ओरिएंटेड दोनों के कॉन्सेप्ट्स को आप बहुत अच्छे से C++ में एक्सपेरिमेंट करके प्रैक्टिकली देख सकते हैं. तो इसलिए यहाँ पे पॉइंटर और रेफरेंस दोनों दिया हुआ है. दोनों को यूज करें, दोनों को समझें कैसे यूज होता है और अप्रिशिएट करें देयर इम्पोर्टेंस एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. सो पॉइंटर और रेफरेंस का एक छोटा सा एग्जांपल है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. अभी टुडे विल कंटिन्यू विथ अवर डिस्कशन ऑन पॉइंटर एंड रेफरेंस कंपैरिजन. सो वी कैन क्रिएट एरे ऑफ पॉइंटर्स. So in order to create an array of pointers, the simple syntax is that data type space array size. This is an existing array. It is not an array of pointers. It is an existing array of any data type. तो जिस डेटा टाइप का एरे आपने बनाया है, सेम डेटा टाइप का पॉइंटर बनाएंगे. डेटा टाइप एस्ट्रिक्स ptr इक्वल टू, यू हैव टू असाइन द एरे नेम. यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑब्जर्व दैट वी आर मेंशनिंग द एरे नेम. वी आर नॉट मेंशनिंग एम्परसेंड एरे नेम. ऑब्जर्व किया, इसमें एरे नेम है, इट इज नॉट एम्परसेंड एरे नेम. व्हाई? कैन एनीबडी टेल मी व्हाई यहाँ पे हम लोग ने ptr इक्वल टू एरे लिखा है, व्हाई नॉट एम्परसेंड एरे? एड्रेस ऑफ एरे क्यों नहीं लिख रहे हैं? कोई बता पाएगा क्या? सर क्योंकि वो उसका जीरो इंडेक्स से चालू होता है ना, तो उसको स्टोर कर. हाँ, तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, ये इंटरव्यूज में भी पूछ सकते हैं, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस भी पूछते हैं कई बार. एरे नेम को याद रखिएगा, इट इज ऑलवेज अ पॉइंटर. रिमेंबर, एरे नेम इज ए पॉइंटर which points towards the first location of the array. एरे जो है खुद एक पॉइंटर है जो एरे का स्टार्टिंग लोकेशन, जो फर्स्ट लोकेशन होता है एरे का, उस तरफ, उस एड्रेस की तरफ पॉइंट करता है. तो इसीलिए इस स्टेटमेंट में आप ऑब्जर्व करेंगे ptr इक्वल टू एरे लिखा है. दैट मीन्स एरे का वैल्यू दे रहा है. एरे का वैल्यू क्या रहेगा? एरे इज ए पॉइंटर. पॉइंटर का वैल्यू क्या होता है? पॉइंटर का वैल्यू होता है उसका एड्रेस जो पॉइंटर के अंदर हमने स्टोर किया हुआ है. So by default, what happens is that whenever we create an array, the compiler makes the array name as a pointer and assigns the address of the first location of the array to this particular pointer. So when we say data type asterisk ptr equal to array, we are actually copying the address present inside the array into ptr. So ptr भी उसी लोकेशन पे पॉइंट करने लगेगा जो array पॉइंट कर रहा है. अब एग्जांपल ऑब्जर्व करें, यहाँ पे int AR5 लिखा है. So what happens in this particular statement is that we are creating 5 locations, 5 consecutive memory locations,
and every memory location will store an int value. सो टर्बो सी प्लस प्लस में अगर प्रोग्राम कर रहे हैं तो 2 बाइट के 5 लोकेशंस, टोटल 10 बाइट्स एलोकेट होगा, और जो स्टार्टिंग लोकेशन है उसका एड्रेस ए आर के अंदर स्टोर हो जाएगा. सो ए आर इज अ पॉइंटर एक्चुअली. एरे नेम itself is a pointer. So what the compiler will do, it will arrange to allocate series of 5 memory locations which can store 2 bytes each, and the starting address will be given to or assigned to AR. So AR will now contain the starting address of the entire array. So AR is actually a pointer. प्लस एक और चीज याद रखिएगा, AR इज ए कांस्टेंट पॉइंटर. ठीक, अभी अपन ने कांस्टेंट पॉइंटर पढ़ा था ना, वही है. एरे नेम इज ए कांस्टेंट पॉइंटर. इसका मतलब इसके अंदर जो एड्रेस आपने दिया है इसको आप चेंज नहीं कर सकते, इट्स ए कांस्टेंट पॉइंटर. ठीक है. सो एरे के अंदर जो एड्रेस आता है वो कौन सा एड्रेस आता है? द एरे नेम इटसेल्फ इज एन एड्रेस. एरे नेम इटसेल्फ is a pointer which contains the address of the first location of the array. ठीक, इसको थोड़ा ऑब्जर्व करें. अभी मैंने जो बताया था इसको थोड़ा सोच के देखिए. एरे नेम itself is a pointer which contains the address of the first location of the array, and also it is a constant pointer. वो कांस्टेंट पॉइंटर है. ठीक है. कांस्टेंट पॉइंटर मतलब एक बार जो एड्रेस मिल गया वो चेंज नहीं हो सकता. एक बार जो एड्रेस उसको मिल गया वो चेंज नहीं कर सकते. So array name is a pointer. It has the address of the first location of the array, and that particular address which is being assigned cannot be changed. उसको चेंज नहीं कर सकते. ठीक. सो इसको बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा. एरे नेम itself is a pointer which contains the first address of the first location of the array, and because it is a constant pointer, so once the address is given, once the address is assigned, it cannot be changed. ठीक. अभी मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा. सो ठीक, अब इसको हम लोग अभी इसको याद रखिएगा. अभी मैं वी जस्ट सी द डिफरेंस फर्स्ट. तो मैं एक को एग्जांपल के थ्रू आपको बताने वाला हूँ. सो यहाँ पे एरे नेम जो है, यहाँ पे जैसे AR जो है, इट इज एरे नेम. इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट लोकेशन ऑफ द एरे. सो एस्ट्रिक्स P इक्वल टू AR जब लिख रहे हैं तो इसमें एम्परसेंड नहीं लगाएंगे, क्योंकि AR के अंदर जो एड्रेस है वो चाहिए, ना कि AR का एड्रेस. देखिए देयर इज डिफरेंस. AR के अंदर में जो एड्रेस है वो चाहिए, ना कि AR का एड्रेस. AR का एड्रेस हमको नहीं चाहिए. हमको क्या चाहिए? AR के अंदर में जो एड्रेस रखा है, जो वैल्यू है AR का, वो चाहिए. इसीलिए यहाँ पे एम्परसेंड एस्ट्रिक्स P इक्वल टू AR लिखा है, एम्परसेंड AR नहीं लिखा है. ठीक है. एम्परसेंड AR लिखने से AR का एड्रेस मिलेगा. मुझे AR का एड्रेस नहीं चाहिए, मुझे एरे का स्टार्टिंग एड्रेस चाहिए. और एरे का स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो AR के अंदर एज ए वैल्यू स्टोर्ड है, बिकॉज AR इज ए पॉइंटर. तो पॉइंटर में क्या वैल्यू स्टोर हो सकता है? एड्रेस. तो एड्रेस कौन सा? स्टार्टिंग लोकेशन का एड्रेस. इसीलिए इंट एस्ट्रिक्स P इक्वल टू AR लिखा है, नॉट एम्परसेंड AR. और जैसे ही P के पास AR का वैल्यू आ गया, इसमें मतलब P कहाँ पॉइंट करने लगेगा? इस एरे की तरफ पॉइंट करने लगेगा. ठीक. अब इसी को रेफरेंस में देखेंगे. वी कैन क्रिएट अ रेफरेंस टू एन एरे. जब हम रेफरेंस टू एन एरे बनाते हैं, इसको याद रखना पड़ता है कि द डेटा टाइप क्या है जिसकी तरफ रेफरेंस पॉइंट करेगा. रेफरेंस किसके तरफ पॉइंट करेगा या किसका रेफरेंस बन रहा है, उसको ध्यान में रखना है. सेम आपको डेटा टाइप उसके लिए यूज करना है. सो नाउ एज वी नो दैट एरे नेम इटसेल्फ इज अ पॉइंटर, तो जब हम रेफरेंस बनाएंगे तो भी उसको पॉइंटर बनाना पड़ेगा. तो हम इसको क्या बोलते हैं? पॉइंटर रेफरेंस. इसको पॉइंटर रेफरेंस बोलते हैं. Why it is a pointer reference? Because
the reference that we are going to create will point towards a pointer, will be a duplicate name for a pointer. So it should be a reference pointer. So pointer to reference इसको बोलते हैं point, reference pointer, sorry, reference pointer, a reference that is a pointer type. ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल, ये जो बेसिक सिंटैक्स को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे कि जब हम एक रेफरेंस पॉइंटर बनाते हैं तो डेटा टाइप लिख के एस्टेरिक्स लगाते हैं, बिकॉज पॉइंटर डेटा टाइप होना चाहिए, साथ में एम्परसेंड ऑपरेटर भी लगाएंगे बिकॉज ये रेफरेंस ऑपरेटर है। टू क्रिएट अ रेफरेंस वी नीड एन एम्परसेंड ऑपरेटर। ठीक, सो डेटा टाइप एस्टेरिक्स बिकॉज this reference that is going to be created will be a reference to a pointer, so data type asterisk। साथ में क्योंकि ये रेफ जो है वो रेफरेंस बनने वाला है तो एम्परसेंड भी लगाना पड़ेगा, तो एस्टेरिक्स और एम्परसेंड दोनों साथ साथ लगेगा। ठीक, एंड इक्वल टू करना पड़ेगा बिकॉज रेफरेंस जब भी हम क्रिएट करते हैं इमिडिएटली उसको जो है असाइनमेंट देना जरूरी है, इट इज ए रूल, बिना असाइनमेंट के रेफरेंस तैयार नहीं कर सकते। सो एम्परसेंड रेफ इक्वल टू AR एरे नेम। ठीक, सो एरे नेम देंगे, उसको रेफरेंस इक्वेट कर देंगे एंड रेफरेंस विल बी स्टार एम्परसेंड, पॉइंटर रेफरेंस बन रहा है ये। एग्जांपल में देखिए इंट AR5, सो एरे AR इज ऑफ 5 एलिमेंट्स। अब इसका रेफरेंस बना रहे हैं तो क्योंकि AR जो है वो खुद एक पॉइंटर है, इंट एस्ट्रिक्स है। AR को जब हम डिक्लेयर करेंगे, अगर नॉर्मली डिक्लेयर करते हैं तो कैसे डिक्लेयर करते हैं, इंट एस्ट्रिक्स। इसीलिए जब रेफरेंस बनाएंगे तो इंट एस्ट्रिक्स करके बनाना पड़ेगा। अगर ये कैर AR होता तो यहाँ पे हम कैर एस्ट्रिक्स लिखते, ये अगर डबल AR होता तो डबल एस्ट्रिक्स लिखते। ठीक, सो इंट AR लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट में 5 है, दैट मींस इट इज एन इंट। when we declare it we will be declaring it as int asterisk। so हम जब रेफरेंस बनाएंगे तो int asterisk करके डिक्लेयर करेंगे, एम्परसेंड लगाएंगे बिकॉज रेफरेंस इज गेटिंग क्रिएटेड, फिर रेफरेंस का नेम है r, इक्वल टू करना पड़ेगा। और कौन सा रेफरेंस, AR इज द पॉइंटर whose reference is r, so r is a reference pointer, r क्या बन गया, रेफरेंस पॉइंटर बन गया। So R now becomes a pointer which is a type of reference। इसका मतलब AR जिस मेमोरी लोकेशन का, अब इसको इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, डिफरेंस देखेंगे दोनों में। अभी क्या दिख रहे हैं कि याद रखना है कि AR जिस मेमोरी लोकेशन का नेम है, AR जिस मेमोरी लोकेशन का नेम है, सेम मेमोरी लोकेशन का नेम R भी बन जाएगा। तो AR जिस मेमोरी लोकेशन का नेम है, सेम नेम जो है R बन जाएगा। इसीलिए R का रेफरेंस पे आप AR के सभी एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सो R स्क्वायर ब्रैकेट में I लगा दीजिए, इट इज इक्वलेंट ऑफ राइटिंग AR स्क्वायर ब्रैकेट में I। तो दिस इज अबाउट द वेरी बेसिक कंपैरिजंस। अभी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक, एग्जांपल्स के थ्रू पॉइंटर और रेफरेंस का जो है हम डिफरेंस को अप्रिशिएट करेंगे। आई विल शेयर द कोडिंग विंडो नाउ। जिसको कोई भी डाउट होता है तुरंत पूछेंगे और जो है साथ साथ प्रोग्राम करें, एक साथ मेरे साथ साथ जो है सब लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक, किसी को अगर ऑडियो वीडियो का कोई भी प्रॉब्लम होता है इमीडिएटली बताएंगे, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता है, आप लोग बताएंगे तभी मुझे पता लगेगा। ठीक, सो आई विल स्टार्ट द कोडिंग विंडो। अभी मेरा कोडिंग विंडो शुरू नहीं हो रहा है, एक सेकंड। एक सेकंड, ऑनलाइन वाला कुछ प्रॉब्लम कर रहा है।
I will start my own C++ कोड विंडो। अच्छा, अभी तक जो मैंने बताया है इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? मैं फिर से आपको सेम प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ, तब तक मैं अपने कोडिंग विंडो को ट्रैक पे लाता हूँ। ठीक, अभी मैंने जो स्लाइड शेयर किया है इस पे एक बार आप लोग गौर कीजिए। कुछ डाउट हो रहा है तो पूछिए। कौन सा वाला? हाँ 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 हाँ, ठीक। एरे वाला ना? अभी जो स्लाइड दिख रहा है उसको ना? हाँ, ठीक। सो क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, अभी एग्जांपल को ऑब्जर्व करिए। इंट ए आर स्क्वायर ब्रैकेट में 5 लिखा है। जब इंट ए आर स्क्वायर ब्रैकेट में 5 लिखा रहता है, इट्स एक्चुअली क्रिएटिंग एन एरे। वी आर क्रिएटिंग एन एरे, ठीक है। मेरा कोडिंग विंडो है, मैं कोडिंग के थ्रू ही आपको समझाना चाहूंगा एक्चुअली में। मेरा कोडिंग विंडो शुरू हो गया, मैं उसको शेयर कर रहा हूँ, एक सेकंड। सो कोडिंग विंडो दिख रहा है सबको? हाँ हाँ, ठीक ठीक, एक सेकंड ना, मैं इसको थोड़ा चला लूँ। प्रॉब्लम क्रिएट करता है कभी कभी। ठीक है, चलिए अभी मैं शेयर करने वाला हूँ। ये सभी को दिख रहा है कोडिंग विंडो? एक बार प्लीज मुझे बता दीजिए। ठीक है। दो एक्चुअली दो मीटिंग्स चल रहे हैं ना, इसलिए मेरे को कंफर्म करना जरूरी है, दोनों को दिखना चाहिए। सो सर नहीं दिख रहा। नहीं दिख नहीं रहा। दिख रहा सर। एक एक मिनट, देखिए इतना सारा इसमें मैसेजेस आ रहे हैं ना, मैं अभी नहीं समझ पा रहा हूँ कहाँ पे क्या चल रहा है। अभी दिख रहा है सबको? अभी बताइए। यस यस सर। हाँ चलो, थैंक यू थैंक यू। यस सर। गुड गुड। चलिए अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो हम लोग मेन फंक्शन के अंदर में है। मेन फंक्शन के अंदर में अ, सबसे पहले आई विल क्रिएट एन इंटीजर एरे। ठीक है, एरे क्रिएट कर रहा हूँ 5 एलिमेंट्स का, ए आर करके 5 एलिमेंट्स का एरे क्रिएट किया। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है ऑब्जर्वेशन, दैट ए आर इज अ पॉइंटर पॉइंटिंग, इसे कांस्टेंट पॉइंटर बोलना चाहिए, पॉइंटिंग टुवर्ड्स फर्स्ट लोकेशन ऑफ द एरे। तो ए आर जैसे हम क्रिएट करेंगे, तुरंत ए आर जो है कंपाइलर क्या करेगा, ए आर को एज ए कांस्टेंट पॉइंटर बनाएगा एंड इट विल स्टार्ट पॉइंटिंग, इट विल असाइन द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट लोकेशन, जो भी एलोकेशन हुआ रहेगा। जैसे 5 एलिमेंट्स हैं तो 3 एलिमेंट्स कर देता हूँ अभी मैं, जस्ट फॉर इजीनेस। तो 3 एलिमेंट्स का एरे बनेगा। तीनों एलिमेंट्स में इंट वैल्यू रख सकते हैं, और ये जो कंजिक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस बनेंगे उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा वो ए आर के पास चला जाएगा। तो जैसे हम ऐसे करते हैं सी आउट ए आर, ठीक।
तो सी आउट ए आर अगर मैं प्रिंट करूं, लेट मी रन द प्रोग्राम। सी आउट अगर ए आर प्रिंट करते हैं तो क्या मिलता है, एक बार ऑब्जर्व करते हैं। एक मिनट, आई थिंक आई शुड शेयर द एंटायर विंडो, एंटायर स्क्रीन। I will share the entire screen so that we all are able to see. ठीक है, ये सबको दिख रहा है, ये आउटपुट जो दिख रहा है। हेलो सर, मेरा क्लास चल रहा है सर। हाँ, हाँ। ये स्क्रीन सबको दिख रहा है कि अभी जो आउटपुट स्क्रीन में दिखा रहा हूँ ये ब्लिंक कर रहा है कर्सर? यस सर। हाँ, तो आप इसको ऑब्जर्व करें। ये जो आप ऑब्जर्व करेंगे क्या लिखा है, 0x0018FF40 लिखा है। 0x से जो भी शुरू होता है दैट इज एन हेक्साडेसिमल वैल्यू, एंड हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या होता है, एड्रेसेस को हम लोग हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो द कंपाइलर रिप्रेजेंट्स द एड्रेसेस एज हेक्साडेसिमल। तो कोड विंडो का अगर ऑब्जर्व करेंगे, मैंने कोड विंडो में क्या लिखा था, कोड विंडो को ऑब्जर्व करेंगे। कोड विंडो में हमने क्या लिखा था, सी आउट ए आर। सी आउट ए आर जब अपन ने लिखा है तो सी आउट ए आर का मतलब क्या है, वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू सी व्हाट द वैल्यू ऑफ ए आर इज, वैल्यू प्रेजेंट इनसाइड ए आर। ए आर के अंदर क्या वैल्यू है उसको देख रहे हैं। जब हम इसको प्रिंट करके देख रहे हैं देन वी कैन सी दैट द वैल्यू ऑफ ए आर इज व्हाट, 0x08। इसका मतलब ये जो है इट इज समथिंग एड्रेस, सम एड्रेस इज देयर। ठीक है, मैं फिर से इसको और आपको और क्लियरली बता दूं। जैसे ए आर 0 में मैं वैल्यू डालता हूँ 100, ए आर 1 में वैल्यू डाल देते हैं 200, ए आर 3 में वैल्यू डाल देते हैं 300 से 100, 200, 300। फिर सी आउट ए आर करके देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है। ठीक, अभी भी आप ऑब्जर्व करेंगे इट इज द एड्रेस। ठीक है, तो अगर आप आउटपुट ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे, ये जो आउटपुट मिल रहा है सी आउट ए आर के कारण, इट इज एन एड्रेस। ठीक है, ये एक एड्रेस है। ये 100, 200, 300 तो नहीं दिखा रहा, ये तो एड्रेस दिखा रहा है। सी आउट ए आर करने से एड्रेस क्यों दिखा रहा है? द सिंपल रीजन इज दैट कि ए आर जो है इट इज अ पॉइंटर विच कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट लोकेशन ऑफ द एरे। फर्स्ट लोकेशन कौन सा, फर्स्ट लोकेशन इसमें मुझे बताएंगे फर्स्ट लोकेशन में क्या वैल्यू रखा हुआ है यहाँ पे इस एरे में? कैन एनीबॉडी टेल मी? 100। 100 एग्जैक्टली। ये जो 100 रखा है, हाँ, जी, ये जो 100 रखा हुआ है मेमोरी में, हाँ करेक्ट, ये जो 100 रखा हुआ है मेमोरी के अंदर में, ये कहाँ रखा हुआ है, ये इस जगह पे रखा है 0x0018FF40 में रखा हुआ है। ठीक है, अब इसको हम डी रेफरेंस करके देखेंगे। इसको मैं बैकस्लैश कर देता हूँ। सर अभी उसका एड्रेस बता रहा था ना? हाँ, ये अभी एड्रेस बता रहा था। अभी देखिएगा, मैं इसमें ना, इसमें एस्ट्रिक्स एआर करते हैं। देखिए, एस्ट्रिक्स एआर करने से क्या मतलब है, वैल्यू एट एड्रेस, वैल्यू एट एड्रेस दिखाएगा। ठीक है, देखिए आउटपुट देखिए, देखिए वैल्यू एट एड्रेस दिखाएगा। एस्ट्रिक्स एआर का मतलब क्या है, वैल्यू एट एड्रेस। ठीक, सो जब हम ए आर प्रिंट कर रहे हैं तो इट इज गिविंग अस द एड्रेस। इसका मतलब ए आर जो है अगर एड्रेस स्टोर करता है अपने अंदर में तो ए आर इज अ पॉइंटर। सिंपल है, क्योंकि कोई ऑर्डिनरी वेरिएबल तो एड्रेस स्टोर नहीं कर सकता अपने अंदर में, सिर्फ पॉइंटर ही ऐसा एक स्पेशल वेरिएबल है जो अपने अंदर एड्रेस स्टोर करके रख सकता है। सो व्हेन वी आर सेइंग दैट सी आउट ए आर, ये जो सी आउट ए आर लिखा है इसका मतलब एरे का वैल्यू प्रिंट करो। ए आर का वैल्यू क्या प्रिंट हो रहा है, 0x0, मतलब एड्रेस प्रिंट हो रहा है, हेक्साडेसिमल एड्रेस। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैल्यू एट एड्रेस दिखाओ तो क्या दिखाता है, 100, ये जो पहला लोकेशन का वैल्यू। that means this proves that the array name itself is a pointer which points towards the first location of the array, which points towards the first location of the array।
ठीक है, तो इसको जो है याद रखिएगा। अब ये आइडिया समझ में आया कि पहले तो ये समझना जरूरी है कि एरे नेम इटसेल्फ इज अ पॉइंटर, है ना, ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? इसको अपने अभी प्रूव किया है कि एरे नेम इटसेल्फ इज अ पॉइंटर, बिकॉज जैसे हम एरे नेम को प्रिंट करा रहे हैं तो उसका वैल्यू प्रिंट हो रहा है, हेक्साडेसिमल एड्रेस प्रिंट हो रहा है, तो इट इज अ पॉइंटर। और जैसे एस्ट्रिक्स लगा रहे हैं तो फर्स्ट लोकेशन का जो वैल्यू है उसको निकाल के दिखा रहा है। वैल्यू एट एड्रेस इज 100, वैल्यू एट एड्रेस क्या मिल रहा है? 100 मिल रहा है। ठीक, ये आइडिया समझ में आया है, हाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ए एरे, हाउ इट इज ए पॉइंटर। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? कोड तो सबको दिख रहा है, कोडिंग में किसी को कोई दिक्कत है क्या? कोई? नो सर। ठीक है, तो अभी इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सो वी हैव व्हाट वी हैव प्रूव्ड नाउ दैट AR एरे नेम इटसेल्फ इज अ पॉइंटर, बिकॉज जैसे हम एरे को प्रिंट कर रहे हैं, AR के नेम को प्रिंट कर रहे हैं, मतलब AR को यूज करके प्रिंट कर रहे हैं, तो वो AR का वैल्यू प्रिंट कर रहा है विच इज एन हेक्साडेसिमल वैल्यू, सो इट इज एन एड्रेस, मेमोरी एड्रेस है। उसके बाद जब हम वैल्यू एट एड्रेस प्रिंट कर रहे हैं तो फर्स्ट लोकेशन का जो वैल्यू है वो प्रिंट करा के दिखा रहा है। इससे मतलब ये जो एड्रेस दिख रहा था वो फर्स्ट लोकेशन का एड्रेस है ना, तभी तो एस्ट्रिक्स AR करने से पहला लोकेशन का वैल्यू दिखा रहा है, वैल्यू एट एड्रेस 100 दिखा रहा है। ठीक है, अब अब ये कांस्टेंट पॉइंटर है, ये कैसे प्रूव करेंगे? देखिए कांस्टेंट पॉइंटर को कैसे प्रूव करना है। जैसे मैंने एक और वेरिएबल बनाया इंट से a इक्वल टू से 400। अब मैं चाहता हूं, हमको पता है कि AR तो एक पॉइंटर है, तो एड्रेस ऑफ A डाल देते हैं पॉइंटर के अंदर। लेट अस सी एड्रेस ऑफ A जाएगा कि नहीं पॉइंटर के अंदर में। हम क्या कर रहे हैं, AR जिस एड्रेस की तरफ पॉइंट कर रहा था उसको चेंज करके ठीक, AR जिस एड्रेस की तरफ पॉइंट कर रहा था, मतलब अरे यार रुको अभी ये बंद होने वाला नहीं हुआ बंद। एक बार फिर से रन करते हैं। ठीक, अभी जो है मेक फेल्ड आया है। ठीक है, तो मेक फेल्ड क्यों आ रहा है? क्योंकि AR इक्वल टू एम्परसेंड हम नहीं दे सकते। देखिए यहाँ पे एल वैल्यू रिक्वायर्ड, ठीक है, एल वैल्यू रिक्वायर्ड आ रहा है। देखिए यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, इस पर्टिकुलर जगह पे एल वैल्यू रिक्वायर्ड आ रहा है। ठीक, ये इसलिए करने नहीं देगा क्योंकि आप AR के पास जो भी आपके पास एड्रेस आ चुका है उस एड्रेस को आप चेंज नहीं कर सकते। कैसे आया उसके पास एड्रेस? जैसे ही आपने एरे बनाया तुरंत एरे के अंदर में फर्स्ट लोकेशन का एड्रेस आ जाता है, ये कंपाइलर करके देता है। ऑल्सो AR जो है इट इज ए कांस्टेंट पॉइंटर, इसका मतलब AR के अंदर में जो एड्रेस आया था इट कैन नॉट बी चेंज। तो AR इक्वल टू एम्परसेंड लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, कंपाइलेशन में एरर आएगा, बिकॉज AR इज ए कांस्टेंट पॉइंटर। कांस्टेंट पॉइंटर मतलब सो एरे नेम इटसेल्फ इज ए कांस्टेंट पॉइंटर which points towards the first location of the array। ठीक है, तो होपफुली ये आइडिया आपको समझ में आया होगा। अब आप मुझे गेस करके बताइए कि AR स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने +1 लिख दिया है, इसमें क्या आउटपुट मिलना चाहिए, जरा बता सकते हैं क्या? नेक्स्ट एलिमेंट का इसमें एड्रेस। गेस कर तो नेक्स्ट वैल्यू मिलेगा। एग्जैक्टली नेक्स्ट लोकेशन का एड्रेस मिलेगा और नेक्स्ट लोकेशन में 200 जो लिखा हुआ है जो रखा हुआ है वो मिलेगा। तो इसको हटाना पड़ेगा, एल वैल्यू रिक्वायर्ड आ रहा है। ठीक, ये नेक्स्ट लोकेशन का एड्रेस है और नेक्स्ट लोकेशन का वैल्यू आ रहा है। सो ड्यू टू दिस स्टेटमेंट हम जो है नेक्स्ट लोकेशन पे पहुंच गए। +1 करने से नेक्स्ट लोकेशन में पहुंच रहा है वो। ये जो +1 जो इंक्रीमेंट हो रहा है ना, इट इज ऑन इम्प्लिसिट इंक्रीमेंट। हम लिख जरूर रहे हैं +1, लेकिन वो कितने बाइट से आगे बढ़ रहा है? 2 बाइट से आगे बढ़ेगा। क्यों 2 बाइट से आगे बढ़ेगा? क्या रीजन है? कैन एनीबॉडी टेल मी? अभी जो अपन ने +1 लिखा है वो 2 बाइट से आगे बढ़ने वाला है। आप इसको टेस्ट करके देख सकते हैं। जैसे मैं अभी अभी इसको रिमेम्बर करिए। ठीक है, अभी हम इसको रन अनसाइंड इंटीजर है।
और एक से बढ़ेगा, तो लेकिन मेमोरी स्पेस में 2 से बढ़ेगा क्योंकि इंट टाइप है। एग्जैक्टली अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जो है 0x0018FF440 लिखा है। ठीक है, 40 में 100 रखा हुआ है। ठीक, +1 करेंगे, 40 में 100 था, अब 44 में 100 है। देखो 4 बाइट से आगे बढ़ गया है, 4 बाइट से आगे बढ़ा ना, 4 बाइट से आगे बढ़ा। देखो 44 हो गया लास्ट में, +1 करते ही वो 4 बाइट से आगे बढ़ चुका है। ये 4 बाइट से आगे क्यों बढ़ गया, ये कोई बता पाएगा क्या? 2 बाइट से आगे क्यों नहीं बढ़ा? 42 होना चाहिए था ना, 40 पे था लोकेशन, पहला लोकेशन 40 पे था। अभी नेक्स्ट +1 करने से तो 42 पे पहुंचना चाहिए था ना, 44 पे कैसे पहुंच गया? सर इंटीजर का साइज 4 होता है तो नेक्स्ट एलिमेंट 4 वाले प्लस में स्टोर बोरलैंड होता सी प्लस प्लस में आप देखिए, अभी यही डिफरेंस है। इसको अगर टर्बो सी प्लस प्लस में लिखे रहते हैं ना, तो 2 बाइट से आगे बढ़ता। ठीक है, क्योंकि टर्बो सी प्लस प्लस में इंट का 2 बाइट्स है, जो वो 32 बिट सिस्टम के हिसाब से, पुराने सिस्टम के हिसाब से है। बोरलैंड सी प्लस प्लस जो है एक इंटीजर का 4 बाइट्स लगाता है, 4 बाइट्स लगाता है। दैट्स वाई ये 4 बाइट से आगे बढ़ चुका है। +1 करते ही 4 बाइट आगे बढ़ गया, बिकॉज डेटा टाइप इंट है। अगर कैर होता तो एक एक बाइट से आगे बढ़ता, डबल होता तो 4 का डबल सीधे 8 8 बाइट से 8 8 बाइट्स से आगे बढ़ता, फ्लोट होता तो 8 8 बाइट से आगे बढ़ता, ऐसे एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, so this is how it works. So the concept was that to understand that array name itself is a pointer which points towards the first location of the array. So if I am creating a reference to an array, अब पॉइंट ये था, डिफरेंस में आप लोग कंपैरिजन कर रहे थे। अगर मुझे इसका पॉइंटर का रेफरेंस बनाना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? पहले तो मुझे इंटीजर पॉइंटर, क्योंकि पॉइंटर रेफरेंस बनेगा, %r लगाएंगे बिकॉज इट इज अ रेफरेंस वेरिएबल, तो एम्परसेंड लगाना जरूरी है। इक्वल टू AR लिखेंगे। ठीक है, AR लिखने से क्या होगा, कौन से रेफरेंस मिलेगा हमको? ये पहले लोकेशन का रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, जो पहला लोकेशन है इसका रेफरेंस मिल जाएगा। तो R विल बिकम अ पॉइंटर टू दिस फर्स्ट लोकेशन। तो फर्स्ट लोकेशन की तरफ अगर पॉइंट करने लगे, तो आप अगर R लिखेंगे, यहाँ पे देखिएगा एग्जैक्टली सेम वैल्यू मिलेगा। R अगर लिखते हैं एंड एस्ट्रिक्स ऑफ R लिखते हैं, आउटपुट हो गया, क्या हो गया? ये कुछ कुछ गड़बड़ कर रहा था बीच बीच में। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो कुल मिला के इसको ध्यान रखिएगा, अभी हाईलाइट होकर रखा है, इसी को ऑब्जर्व कर लीजिए कि AR के अंदर में जो हमने क्या बनाया, इंट एस्ट्रिक्स %r इक्वल टू AR, सो R बिकम्स अ रेफरेंस पॉइंटर। ठीक है, रेफरेंस टू ए पॉइंटर, एक्चुअली इट इज रेफरेंस टू ए पॉइंटर बिकॉज AR इटसेल्फ इज ए पॉइंटर। उसका अगर मुझे रेफरेंस बनाना है तो मुझे पॉइंटर टाइप का ही रेफरेंस बनाना पड़ेगा। तो इंट एस्ट्रिक्स टाइप का हम लोग रेफरेंस बना रहे हैं, और रेफरेंस क्योंकि एम्परसेंट लगाने के बाद ही बनता है, इसलिए एम्परसेंट लगा रहे हैं और इक्वेट कर रहे हैं टू AR। सो R बिकम्स ए डुप्लीकेट नेम फॉर AR, R becomes a duplicate name for AR. So जो AR से आप ऑपरेशंस कर रहे थे, एग्जैक्टली R से सेम ऑपरेशंस आप कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट वगैरह जो है आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन अबाउट रेफरेंस एंड पॉइंटर्स। तो एक बार कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा है शायद, चलिए कोई बात नहीं। So this was the thing I wanted you to all to understand, that पॉइंटर और रेफरेंस के बारे में जो बेसिक डिफरेंस था उसको समझना है। ठीक है, एक और एग्जांपल आपको मैं बता देता हूँ। इसको स्टॉप करते हैं, एक सेकेंड, आई विल हैव टू रीस्टार्ट द कंपाइलर। बीच बीच में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। सर दोनों का काम सेम है तो दोनों में से इफेक्टिव कौन सा है, मतलब दोनों में से अच्छा कौन सा है?
हाँ, अभी मैंने बताया था ना, रेफरेंस जो है ना वो एक्स्ट्रा मेमोरी लोकेशन नहीं लेगा। रेफरेंस जो है वो एक्स्ट्रा मेमोरी लोकेशन नहीं लेगा, पॉइंटर जो है एक्स्ट्रा मेमोरी लोकेशन लेता है। सो पॉइंटर अगर एक्स्ट्रा मेमोरी लोकेशन लेगा, इसका मतलब कौन सा बेटर हुआ, जो मेमोरी लोकेशन ज्यादा ले रहा है रेफरेंस कि जो कम ले रहा है? सर जो कम लेगा ना कम लेगा। एग्जैक्टली, ठीक है, जो कम ले रहा है वही अच्छा है। ठीक। सो जो कम जगह लेगा वही सबसे बेहतरीन है। ठीक है, मैं एग्जांपल को फिर से, मेरा ये बंद हो जाता है कभी कभी, देख सकते हैं, इसको मैं बता देता हूँ। अब हम बेटर कौन सा है उसको देख लेते हैं। जैसे अभी एग्जांपल बता रहा हूँ, इंट ए इक्वल टू 100, इंट एस्ट्रिक्स पी, एक पॉइंटर बनाया, इंट एम्परसेंड आर इक्वल टू ए बनाया। ठीक है। अब दोनों को ऑब्जर्व करें, पॉइंटर पी हमने बनाया है, रेफरेंस बनाया है, यहाँ पे एक्स्ट्रा मेमोरी रिक्वायर्ड टू स्टोर अ पॉइंटर। पॉइंटर को खुद को एग्जिस्ट करने के, टू एग्जिस्ट, टू मेक द पॉइंटर एग्जिस्ट, वी हैव टू हैव एन एक्स्ट्रा मेमोरी टू स्टोर द पॉइंटर इटसेल्फ। यहाँ पे नो एक्स्ट्रा मेमोरी रिक्वायर्ड। क्यों नहीं रिक्वायर्ड है? बिकॉज सेम मेमोरी लोकेशन का डुप्लीकेट नेम है, सेम मेमोरी लोकेशन का डुप्लीकेट नेम है आर। ए का मेमोरी लोकेशन ऑलरेडी मिल चुका है, आर अपन ने क्या बनाया, ए का डुप्लीकेट मेमोरी लोकेशन का, उसी का डुप्लीकेट नेम बना दिया। सो आर इज नॉट एक्वायरिंग एडिशनल स्पेस। आर का देखिए, अभी आप सी आउट करा के अगर दिखाएंगे, सी आउट करा के मैं दिखा रहा हूँ कि अगर मैं एड्रेस ऑफ पी लिखता हूँ, एड्रेस ऑफ पी, एड्रेस ऑफ पी बोलने से पी का एड्रेस दिखेगा, पी खुद कहाँ पे बैठा हुआ है उसका एड्रेस दिखेगा। अगर मैं p इक्वल टू एम्परसेंड ए लिख देता हूँ और सी आउट बैकस्लैश n p लिखते हैं, तो ये अलग चीज दिखाएगा। ठीक है, इसको दोनों को ऑब्जर्व करिए, इसको रन करके दिखा रहे हैं, ये दोनों को ऑब्जर्व करिए। यहाँ पे ऑब्जर्व करिए कि एम्परसेंड p इक्वल टू, देखिए लोकेशन दिखा रहा है ना, एक हेक्साडेसिमल लोकेशन दिखा रहा है, FF44, और p जो है खुद p के अंदर किसका एड्रेस है, p के अंदर एड्रेस क्या है, 011FF48। ठीक है। सो इसका मतलब p खुद जहां है उसका एड्रेस अलग है, और p के अंदर जो एड्रेस है उसका, वो उसका वैल्यू अलग है। तो खुद p को एग्जिस्ट करने के लिए इसमें मतलब जगह चाहिए। अब देखिए, अब इसको और क्लियरली आपको बता रहा हूँ, आउट कराते हैं, बैकस्लैश n, एड्रेस ऑफ ए इक्वल टू, ए का एड्रेस क्या है उसको एक बार ऑब्जर्व करते हैं, और रेफरेंस जो है, रेफरेंस का एड्रेस प्रिंट कराते हैं। तो देखते हैं कि रेफरेंस खुद कहाँ पे बैठा हुआ, एड्रेस ऑफ आर। ठीक है, अब ऑब्जर्व करिए, क्लोजली ऑब्जर्व करना आउटपुट। देखिए, इसमें आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि पॉइंटर पी का खुद का एक अलग एड्रेस है। मतलब पॉइंटर पी किसी एक मेमोरी लोकेशन में एग्जिस्ट करता है, मतलब एक मेमोरी लोकेशन को एक्वायर करके बैठा हुआ है। अनसाइंड इंटीजर है तो 4 बाइट, क्योंकि बोरलैंड C++ चला रहे हैं, तो अनसाइंड इंटीजर होने के कारण ये 4 बाइट लेके बैठेगा, 4 बाइट्स को एक्वायर करके बैठेगा। पी के अंदर में जो वैल्यू क्या है, इट इज एन एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए गया हुआ, देखिए यहाँ पे p इक्वल टू एम्परसेंड ए लिखा है ना, तो एड्रेस ऑफ ए गया है। एड्रेस ऑफ ए क्या है, दिस इज FF48, दिस इज एड्रेस ऑफ ए। पी के अंदर एड्रेस ऑफ ए है, देखिए एड्रेस ऑफ ए को प्रिंट कराया तो 48 और सेम एड्रेस प्रिंट हो रहा है। एड्रेस ऑफ आर प्रिंट करा रहे हैं तो भी सेम मिल रहा है। मतलब आर खुद एक अलग से कोई मेमोरी लोकेशन लेके बैठा नहीं है, वो सेम मेमोरी लोकेशन जो FF48 है उसी का ही डुप्लीकेट नेम आर बन चुका है। So R has become a duplicate name. The reference variable becomes a duplicate name for the same memory location. Extra memory location is not required. लेकिन पॉइंटर के लिए एक एक्स्ट्रा मेमोरी लोकेशन चाहिए, क्योंकि पॉइंटर को खुद को बिठाना है कहीं पे, उसको खुद को कहीं एग्जिस्ट करना पड़ेगा इन द मेमोरी। फॉर दैट इट रिक्वायर्स अ मेमोरी स्पेस। ये मेमोरी स्पेस देखो, FF44 जो है ये मेमोरी एरिया है जहाँ पे P एग्जिस्ट करता है। P के अंदर में वैल्यू क्या है, इट इज द एड्रेस ऑफ ए, FF48। एड्रेस ऑफ ए देखो FF48 है,
एड्रेस ऑफ आर डबल एफ 4 है, मतलब आर का भी एड्रेस सेम है जो एक एड्रेस है, मतलब अलग से आर को एग्जिस्ट कराने के लिए मेमोरी नहीं चाहिए। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग रेफरेंसेस, बिकॉज रेफरेंस यूज करने से आपको एक्स्ट्रा मेमोरी लोकेशन नहीं लगता है, पॉइंटर यूज करने से एक्स्ट्रा मेमोरी लोकेशन लगता है। इसीलिए जावा में इसको ऑप्टिमाइज कर दिया गया है कि पॉइंटर्स देना ही बंद कर दिया, प्रोग्रामर को पॉइंटर्स है ही नहीं अवेलेबल, इम्प्लिसिटली यूज होता है बाय द कंपाइलर बट it is not available to the programmers. The reference is also available to the programmers, only references are available, because reference use करने से बहुत ही efficiently आप मेमोरी को मैनेज कर सकते हैं और उसका रिजल्ट भी आपको सिमिलर मिलता है। ठीक है, जो पॉइंटर से आप कर सकते हैं रेफरेंस से भी वही चीज कर सकते हैं। अभी मैंने बता दिया पॉइंटर का भी रेफरेंस बना सकते हैं, हमने एक एग्जांपल में भी देखा, किसी भी एरे का भी आप रेफरेंस बना सकते हैं, किसी भी चीज का रेफरेंस बना सकते हैं। तो इसीलिए जब भी आप प्रोग्रामिंग करें प्रेफर यूजिंग रेफरेंसेस। ठीक है, आप पॉइंटर्स का भी यूज है, ऐसा नहीं है पॉइंटर्स का यूज नहीं है, पॉइंटर्स का कहाँ यूज है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में यूज है। डायनेमिक मतलब रन टाइम में अगर मेमोरी एलोकेट करना है तो पॉइंटर चाहिए, उसके बिना नहीं चलेगा। रन टाइम में जब मेमोरी एलोकेशन की जरूरत पड़ती है तो पॉइंटर के बिना काम नहीं चलेगा, तब रेफरेंस काम नहीं आएगा, क्योंकि रेफरेंस तो एग्जिस्टिंग मेमोरी लोकेशन का डुप्लीकेट नेम है। लेकिन कोई मेमोरी लोकेशन अगर अभी बना ही नहीं है तो उसको आप रेफरेंस कैसे देंगे, पहले तो आप पॉइंटर से उसको बनाएंगे। सो ड्यूरिंग देखिए दोनों का बहुत इंपॉर्टेंस है। पॉइंटर्स का इंपॉर्टेंस सिर्फ रन टाइम मेमोरी लोकेशन के लिए है, जो हीप मेमोरी स्पेस में एलोकेशन होता है ना, उसको करने के लिए पॉइंटर्स का यूज किया जाता है। पॉइंटर्स कैन बी यूज टू एलोकेट एंड एज वेल एज डी एलोकेट मेमोरी स्पेसेस ड्यूरिंग रन टाइम। तो एफिशिएंटली आप मेमोरी को मैनेज कर सकते हैं। अगर रन टाइम में मेमोरी एलोकेट हो रहा है तो रन टाइम में उसको रिलीज भी कर सकते हैं यूजिंग पॉइंटर्स, जो रेफरेंस से पॉसिबल नहीं है। रेफरेंस जो है वो स्टैटिक मतलब एग्जिस्टिंग मतलब कंपाइल टाइम में जो चीज बन चुका है उसी का रेफरेंस बन सकता है। रन टाइम में कुछ चीज बन रहा है उसका रेफरेंस बनाना मुश्किल है, नॉट पॉसिबली सो इजीली। ठीक है, सो पॉइंटर्स का यूज जो है डायनेमिक मेमोरी लोकेशन एलोकेशन में यूज होता है, बहुत अच्छे से यूज होता है। लेकिन रेफरेंस का भी यूज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां पे भी हो सके रेफरेंसेस का ही यूज करना चाहिए। होपफुली द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, पॉइंटर और रेफरेंस में जो अपन कंपैरिजन कर रहे हैं? एनी डाउट्स? नो सर। ठीक है, हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए। सर उसमें एरर दिखा रहा है एक बार, पॉइंट रेफरेंस में जब हम लोग एरे को स्टोर कर रहे हैं तब वो एरर दिखा रहा है सर, इनवैलिड इनिशियलाइजेशन ऑफ नॉन कांस्टेंट रेफरेंस ऑफ टाइप इंट। उसमें एड्रेस स्टोर नहीं करना है, रेफरेंस के अंदर एड्रेस स्टोर नहीं होगा। सर जो रेफरेंस के सिंटेक्स दिया था ना वैसे ही किया, फिर भी एरर दिखा रहा है। देखो देखो याद रखो कि रेफरेंस जब क्रिएट होता है ना तो एम्परसेंट साइन जो है आर रेफरेंस के पहले होता है। देखो यहाँ पे जब मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, एम्परसेंट साइन जो है वो रेफरेंस के पहले होगा, एम्परसेंट साइन रेफरेंस के सामने नहीं हो सकता। यहाँ पे आप नहीं एम्परसेंट सर, साइन नहीं लगा सकते। सर एक बार वो बना के बता दीजिए सर, एरे का कैसे करेंगे? एरे के लिए ना, हाँ देखिए बहुत सिंपल सा है। जैसे अभी मैं इसी को एरे के लिए कन्वर्ट कर देता हूँ प्रोग्राम को। सो हमको एरे बनाना है, सो आई वांट एन इंटीजर एरे। आउटपुट विंडो को पहले क्लोज कर देता हूँ, ये बीच में बंद हो जाता है, पता नहीं क्या होता है। इंट ए आर बनाया अपन ने, 3 एलिमेंट्स का एरे बना दिया। ए आर के 0 लोकेशन पे सोच लो 100 पुट किया है अपन ने। ए आर के सेकेंड लोकेशन पे 200 है। ए आर के थर्ड लोकेशन पे 300 है। अब आई वांट टू क्रिएट एन रेफरेंस पॉइंटर, तो इंटीजर एस्ट्रिक्स एम्परसेंड आर लिखना पड़ेगा। रेफरेंस पॉइंटर बन रहा है इक्वल टू ए आर, तो ए आर का ये रेफरेंस बन जाएगा। ठीक, एम्परसेंड आर, एम्परसेंड जो है आर के साथ यूज करेंगे, इक्वल टू साइन के राइट हैंड साइड में एम्परसेंड यूज नहीं करेंगे। ठीक, अब आर बिकम्स ए रेफरेंस टू ए आर। सो अगर मैं फॉर लूप लगाता हूँ इंटीजर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस, अब हम इसको आर स्क्वायर से सी आउट बैकस्लैश एन आर स्क्वायर ब्रैकेट में आई। ठीक है, सो व्हाट आई एम डूइंग हियर इज यूजिंग द आर इंस्टेड ऑफ ए आर, इंस्टेड ऑफ ए आर, ए आर के बदले में आर यूज कर रहा हूँ। ठीक है, सो
ये 100 200 300 जो है वो आर के रेफरेंस पे ही मैं उसको एक्सेस कर पाऊंगा। आई कैन रन द प्रोग्राम नाउ। ठीक है, होपफुली आउटपुट आपको दिख रहा है, अभी मैं दिखा देता हूँ। दिस इज द आउटपुट। ठीक है, सो कोड को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ए आर करके अपन ने 3 एलिमेंट्स का एरे बनाया, एलिमेंट्स को असाइन किया, उसके बाद आर करके एक रेफरेंस बनाया जो ए आर का रेफरेंस है। ए आर क्या है? इंटीजर पॉइंटर। सो इंटीजर पॉइंटर रेफरेंस बनाया अपन ने, इंटीजर एस्ट्रिक्स एम्परसेंड आर, इंटीजर पॉइंटर का रेफरेंस बनाया आर को। ठीक, और आर का हेल्प लेके हम जो है 100 200 300 तीनों को एक्सेस कर पा रहे हैं। मतलब पूरे एलिमेंट्स को आप आई लगा के, सबस्क्रिप्ट लगा के एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, तो दिस प्रोग्राम इज क्लियर। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? सभी लोग का रन हो पा रहा है? एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? Am I audible to सर everyone? हाँ, सर मेरे में अभी भी एरर दिखा रहा है सर। अरे जो मैं मैंने अभी कोड लिखा था वो कोड लिखा? हाँ सर। अरे मेरे में तो मेरे में एरर नहीं आ रहा। सर शायद टर्बो में, एक मिनट सर, मैं मेरे दिखा में भी रहा error हूँ। आ रहा टर्बो है। हाँ, तो मेरे में भी error आ रहा है सर। एक एक मिनट, मैं मिनट फिर सर से दिखा रहा हूँ। रुको, मैं फिर से यस स्क्रीन सर, स्क्रीन मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, रुको। कोडिंग करते वक्त अगर लिखते वक्त दिक्कत तो नहीं कर दिया? देखो जरा, कोडिंग को ऑब्जर्व करो। सर दिखाऊं मैं? एक सेकंड ना, मैं शेयर कर रहा हूँ। ये दिख रहा है सबको? कोडिंग अभी सबको दिख रहा यस सर। है? ये एरर यस क्या आ रहा सर। है ये मेन ऑब्जर्व करो। एरर क्या आ रहा है? एरर में क्या लिख के बता रहा है? एरर में सर किस लाइन इनवैलिड नंबर पे? इनिशियलाइजेशन ऑफ नॉन कांस्टेंट रेफरेंस ऑफ टाइप इंट। मतलब ये वाले स्टेटमेंट में एरर आ रहा है क्या, अभी जो मैंने हाईलाइट किया? यस यस सर। सर। हाँ, इसको ध्यान में रखना। इंट Yes एस्ट्रिक्स sir, साथ में invalid चिपका बोल के रहा लिखो, एक स्पेस लगाओ, फिर एम्परसेंड आर को चिपका के लिखो। मिक्स मत करो, इंट एस्ट्रिक्स को अलग सर लिखो। मैं शो कर रहा हूँ। हाँ, एक सर सेकंड, ऐसे ही लिखे हैं। नहीं तो एरर नहीं आना चाहिए। लिखते वक्त कहीं दिक्कत हुआ है? एक सेकंड ना, मैं वापस स्क्रीन में जा रहा हूँ। ठीक है, हाँ हाँ, स्क्रीन शेयर करो जरा। सर वीडियो देख ऑन है, देख लीजिए। अरे, अब अपना स्क्रीन शेयर कर पाओगे क्या? स्क्रीन शेयर हो सर पाएगा? मैं क्लास क्लास फोन से कर रहा हूँ अच्छा, एक लेकिन काम करो, प्रोग्रामिंग सुनो सुनो, लैपटॉप से कर रहा इसमें चैट में ना कोड पेस्ट करके दो तो चैट में देख लेता हूँ मैं कोड। मैं डिबग करके बता देता हूँ, चैट में पेस्ट कर दो। तो अभी तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है, और इसी पे डिस्कशन अपन करेंगे।